Welcome back, students. The topic of today is expression. एक्सप्रेशन को हिंदी में हम बोलते हैं समीकरण, जिसमें कई सारे ऑपरेटर और ऑपरेंड्स हों जिनके ऊपर कोई ऑपरेशन कैरी आउट की जाए। तो एन एक्सप्रेशन इन पाइथन इज एनी वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, लिटरल्स एंड वेरिएबल्स. An expression is composed of one or more operations with operators, literals and variable as the constituents of expression. तो पाइथन में जो एक्सप्रेशन है वो कोई भी वैलिड सीक्वेंस हो सकता है हमारे ऑपरेटर्स का, लिटरल्स का और वेरिएबल का, जहाँ पे कई सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएं, और उसके लिए हमारे एक एक्सप्रेशन में ऑपरेटर्स, लिटरल्स, वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो ऑपरेटर्स, लिटरल्स, वेरिएबल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एक्सप्रेशन. नाउ पाइथन पुट्स इट इन दिस वे: a valid combination of atoms and operators form a Python expression. In simplest word, an atom is something that has a value. For example, a variable or a literal might be think of as atom. So all of these are atoms in Python. Identifiers, literals, values in enclosures such as quotes, parentheses, brackets, etc., that is the string, tuple, list, dictionary, sets, etc., everything is now considered as operand or atoms in Python. Now the expression in Python can be of any type, that is arithmetic expression. Arithmetic expression means an expression where arithmetical calculation like addition, subtraction, multiplication, division on integer, floating point numbers, complex numbers are carried out. It can be string expression where we are having a string type of value, and on a string we can perform addition or replication. It can be relational expression where we test or compare different operand like greater than, less than, greater than equal to, less than equals to, not equals to, etc. It can be logical expression where we take decision on the basis of truth value, or it can be compound expression where number of different expression type can be used together. Now, the type of operator and operand used in expression determine the expression type. तो जो टाइप ऑफ ऑपरेंड और जो ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं उसके आधार पे ये डिसाइड होता है कि जो एक्सप्रेशन हम यूज़ कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो किस टाइप का एक्सप्रेशन है, वेदर इट इज़ अ string expression or it is arithmetic expression or logical expression and so on. An expression can be compound expression. Please, it is very important, have a note of it. An expression can be compound expression too if it involve multiple type of operation. For example, a plus b is greater than c डबल एस्ट्रिक डी. तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हम एडिशन भी कर रहे हैं, यहाँ पे हम पावर भी रेस कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन भी कर रहे हैं. तो देखिए यहाँ पे अगर a प्लस बी और c डबल एस्ट्रिक डी को अगर हम कंसिडर करें तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, बट इन दोनों टर्म्स के बीच में ग्रेटर दैन सिंबल यूज़ किया गया है, तो दैट इज़ रिलेशनल एक्सप्रेशन. तो हियर वी आर यूजिंग रिलेशनल एक्सप्रेशन एट द सेम टाइम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, सो इट इज़ अ कंपाउंड एक्सप्रेशन. Or if we write a multiply by b less than c multiply by d, again it is combination of arithmetic and relational expression, and that is why it is termed as compound expression, as it involves arithmetic as well as relational as well as logical operators.
नाउ लेट अस टॉक अबाउट दीज वन बाय वन। तो फर्स्ट है इसमें अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। सी, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व नंबर्स दैट इज इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर जो आपने देखा है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड फ्लोर डिवीज़न मॉडुलो एंड डबल एस्ट्रिक। तो इनमें से अगर कोई भी ऑपरेटर आ रहा है और इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ वैल्यू वहाँ यूज़ किया गया है तो दीज आर टर्म्ड एज अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। नाउ कम्स रियल एक्सप्रेशन। तो रियल एक्सप्रेशन एन एक्सप्रेशन रिलेशनल एक्सप्रेशन। तो an expression having literals or variable of any valid type and relational operator is a relational expression. For example, these are the valid relational expression: x is greater than y is less than or equals to z is not equals to x, z is equals to q, and so on. These are example of relational expression. Now the third one is logical expression. To an expression having literals or variable of any valid type and logical operator like and or not, so those are termed as logical expression. For example, these are the valid logical expressions: a or b, b and c, a and not b, not c or not b, etc. These are example of logical expression. Now fourth one is string expression. तो Python also provide two string operator plus and multiply. Here plus symbol if used with the string value, so it will work like concatenation operator. Concatenation is the process of joining two string. For example, Ram plus Shyam will become Ram Shyam. तो इसको हम बोलते हैं concatenation. And asterisk if used with the string, इट इज़ यूज एज रिप्लिकेशन ऑपरेटर. तो प्लस के केस में क्या होता है कि दोनों जो ऑपरेंड हैं वो स्ट्रिंग होने चाहिए, और मल्टीप्लाई के केस में ईदर ऑफ द ऑपरेंड मस्ट बी इंटीजर एंड अनदर मस्ट बी स्ट्रिंग. तो उस केस में क्या होता है, एस्ट्रिक के केस में ये रिप्लिकेशन ऑपरेटर जैसे काम करेगा, और जो स्ट्रिंग है वो उतनी बार रिप्लिकेट हो जाएगी जितनी आपने इंटीजर वैल्यू दी है. तो Python provide two string operator plus and multiply, which when combined with string operand and integer form string expression. With operator plus the concatenation operator, the operand should be of string type only, and with asterisk operator, the replication operator, the operand should be one string and one integer. For example, and plus then will become and then, and asterisk 2 will become and. ऐसे अगर हम and asterisk 4 लिखें तो and ये 4 बार जो and है वो रिप्लिकेट हो जाता. Now example 11 is given in your book. 11 and 12 you can see here. What will be the output produced by the following code? Print 2 multiply by मतलब asterisk no plus 3 asterisk exclamation. फिर लिखा प्रिंट 2 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में NO प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्सक्लेमेशन. तो इस केस में अगर आप देखें तो सबसे पहले अगर आप इसको कंसिडर करें, मैं यहाँ पे आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. 2 मल्टीप्लाई बाई NO प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्सक्लेमेशन. तो इस केस में क्या होगा, ये जो प्लस ऑपरेटर है उसका प्रेसिडेंस हाई होगा, लो होगा, और एस्ट्रिक का प्रेसिडेंस हाई होगा. तो पहले ये एस्ट्रिक सॉल्व होगा और ये एस्ट्रिक सॉल्व होगा. तो 2 मल्टीप्लाई बाई NO, तो यहाँ पे रिप्लिकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा NO, और फिर 3 मल्टीप्लाई बाई एक्सक्लेमेशन मार्क, तो यहाँ पे 3 एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाएंगे, और दोनों जब कॉन्कैटिनेट हो जाएगा तो ये हो जाएगा NO 3 एक्सक्लेमेशन. फिर अगर हम दूसरे को कंसिडर करें तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई NO प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्सक्लेमेशन है. तो ये एक ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू बॉडमॉस रूल वी फर्स्ट सॉल्व द ब्रैकेट. तो ये हो जाएगा NO प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई
एक्सक्लेमेशन, तो एक्सक्लेमेशन मार्क 3 टाइम्स रिपीट होगा और ये होल मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई से, मतलब 2 रिप्लिकेशन NO NO NO, तो ये हो जाएगा NO 3 एक्सक्लेमेशन फॉर द फर्स्ट टाइम और उसके बाद फिर रिप्लिकेट होगा NO 3 एक्सक्लेमेशन. तो दिस विल बी इट्स आउटपुट. Now next thing is what will be the output produced by the following code. print 11 plus 3, 11 plus 3 हम करेंगे तो 14 हो जाएगा और प्रिंट सिंगल कोट में 11 प्लस सिंगल कोट में 3. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 और 3 जो दूसरी लाइन में दिया हुआ है ये दोनों क्या हैं, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हैं. तो हियर द प्लस ऑपरेटर विल वर्क लाइक कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर एंड इट्स रिजल्ट इज 113. Now moving forward, the next thing is evaluating expression. How we can evaluate the expression you are going to see. तो first thing is evaluating arithmetic expression. तो Python has certain set of rules that help in evaluating an expression. Let's see how Python evaluate them. तो evaluating arithmetic expression. So to evaluate an arithmetic expression, Python have the following rules. First, determines the order of evaluation in an expression considering the operator precedence. तो सबसे पहले हम ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन डिफाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं उसके प्रेसिडेंस के आधार पे, ऑपरेटर के प्रेसिडेंस के आधार पे, जिसको हम प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख चुके हैं. प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी रूल दोनों मैंने एक्सप्लेन किया था. जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ वॉच इट वंस अगेन बिकॉज इट इज़ अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल. तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस से ये डिफाइन करते हैं कि कौन सा जो ऑपरेटर है वो पहले वर्क करेगा, कौन सी ऑपरेशन पहले कैरी आउट की जाएगी. देन आफ्टर as per the evaluation order for each of the sub expression, that is generally in the form of value operator value, for example 13 modulo 3, evaluate each of its operand or argument. तो अगर मान लीजिए हमने एक एक्सप्रेशन में कई सारे ऑपरेटर यूज़ किए हैं तो ऑपरेटर के प्रेसिडेंस के आधार पे उसका ऑर्डर डिफाइन हुआ और फिर वन ऑपरेटर एट अ टाइम वर्क करेगा और जो भी इवैल्यूएशन है वो कैरी आउट की जाएगी. नाउ परफॉर्म एनी इम्प्लिसिट कन्वर्जन. अब देखो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन वो आप आगे डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन जान लो इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है. तो अगर एक ही एक्सप्रेशन में अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं तो जो लोअर टाइप के वेरिएबल हैं वो हायर टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन. तो प्रमोटिंग इंटीजर टू फ्लोट और बुलियन टू इंटीजर फॉर अरिथमेटिक और मिक्स्ड टाइप. फॉर इम्प्लिसिट कन्वर्जन रूल ऑफ पाइथन रीड द टेक्स्ट गिवन आफ्टर दिस रूल. जो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है. अभी इस पे आते हैं. चलिए पहले अगर इसको हम कंसिडर कर ही लें फिर हम अपने टॉपिक पे पहुँचेंगे. इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन जिसको बोलते हैं कोअर्सन. तो देखिए एन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज अ कन्वर्जन परफॉर्म बाय द कंपाइलर विदाउट प्रोग्रामर्स इंटरवेंशन. मतलब बिना प्रोग्रामर के हस्तक्षेप के ये जो कन्वर्जन है वो अपने आप पाइथन का जो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, वो खुद से करता है. एन इम्प्लिसिट कन्वर्जन इज अप्लाइड जनरली व्हेनेवर डिफरिंग डेटा टाइप आर इंटरमिक्स्ड इन एन एक्सप्रेशन. मतलब ये रूल तब फॉलो किए जाते हैं जब अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल्स एक एक्सप्रेशन के अंदर आते हैं. whenever differing data type are intermixed in an expression so as not to lose information. In mixed expression, Python convert all operand up to the type of the largest operand जिसको बोलते हैं हम type promotion. In the simplest form, an expression is like OP1 operator OP2. For example, x by y and p multiply double asterisk a. Here, if both arguments are standard numeric type, the following coercion are applied. First, if either argument is complex number, the other will be converted to complex because complex का precedence सबसे high होता है.
Otherwise, if either argument is of floating point number, other is converted into floating point, and no conversion if both operand are integer. तो देखो यहाँ पे ये होता है इंटीजर सबसे नीचे आया, उससे भी नीचे होता है बुलियन। तो बूल, इंटीजर, फ्लोटिंग एंड देन कॉम्प्लेक्स। तो अगर कोई भी एक ऑपरेंड भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दूसरा भी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर दोनों में से कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई एक फ्लोटिंग पॉइंट है, तो दूसरा भी फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर दोनों में से कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नहीं है, एक इंटीजर है एक बुलियन है, तो बुलियन वाला भी इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो रूल होता है दैट इज नोन एज इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन या कोअर्सन या टाइप प्रमोशन। तो इसको इन तीनों नामों से हम रेफरेंस कर सकते हैं। नाउ तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नाउ थर्ड पॉइंट, कंप्यूट इट्स रिजल्ट बेस्ड ऑन द ऑपरेटर, रिप्लेस द सब एक्सप्रेशन विद द कंपाउंड रिजल्ट एंड कैरी आउट द एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन and repeat till the final result is obtained. Now इसके आधार पे आप एग्जाम्पल 13 कंसिडर करें तो कंसिडर द फॉलोइंग कोड कंटेनिंग मिक्स्ड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट एंड फाइनल डेटा टाइप। तो इसमें आप देख सकते हैं CH5 जो बनाया है वो आपका इंटीज़र है, I हमारा इंटीज़र है, FL इंटीज़र है, DB और FD फ्लोटिंग पॉइंट है। अब इसके बाद एक्सप्रेशन यहाँ पे बनाया गया। तो देखिए इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको लिखना होगा जैसे A इज इक्वल्स टू CH प्लस I डिवाइडेड बाई DB। हम इस तरीके से इसको रख लेंगे, CH प्लस I डिवाइडेड बाई DB। अब इसके नीचे लिखेंगे CH का टाइप, तो इसका टाइप होगा हमारा इंटीज़र, I का जो टाइप है ये भी है हमारा इंटीज़र, और DB जो है उसका टाइप है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट। तो इसको मैंने दे दिया यहाँ पे शॉर्ट में FP। अब इसके बाद जब ऑपरेशन होगा तो देखो CH प्लस I ब्रैकेट में है, तो पहले इस पे ऑपरेशन होगा, तो इंट और इंट में जब ऑपरेशन होगा तो रिज़ल्ट हमारा इंट होगा, और उसके बाद इंट और FP पे ऑपरेशन होगा तो इस केस में जो रिज़ल्ट आएगा वो फ्लोटिंग पॉइंट होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका रिज़ल्ट क्या होगा, फ्लोटिंग पॉइंट होगा। तो अगर आप यहाँ पे कंसिडर करें तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये तो जो तरीका बताया इससे आप क्या करेंगे, इसका ये गेट करेंगे कि रिज़ल्ट किस टाइप का आएगा। अब आप इसकी वैल्यू के आधार पे देखिए, तो CH की वैल्यू चुकी है 5 और I की वैल्यू है 2, तो 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 5.0। तो सबसे पहले 5 प्लस 2 सॉल्व होगा, तो 5 प्लस 2 चूँकि ब्रैकेट में है तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 5.0। तो इस केस में क्या होगा कि ये इंटीज़र हो गया और ये फ्लोट हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा और एक्सप्रेशन हो जाएगा 7.0 डिवाइडेड बाई 5.0 एंड रिजल्ट विल बी 1.4। ऐसे ही अगर आप नेक्स्ट वाले को कंसिडर करें, नेक्स्ट वाला एक्सप्रेशन है B इज इक्वल्स टू FD बाई DB मल्टीप्लाई बाई CH बाई 2। तो इस केस में ये जो FD है और DB है ये दोनों क्या हैं, फ्लोट हैं, तो इसका रिजल्ट आएगा आपका फ्लोट। अब उसके बाद इनको होल मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब आप इसको ऐसे समझ लो, मल्टीप्लाई करना होगा CH से, तो ये हो जाएगा फ्लोट मल्टीप्लाई बाई इंट, तो इसका रिजल्ट आएगा फ्लोट। अब फ्लोट और इंटीजर वैल्यू 2 इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न होगा, तो इसका भी रिजल्ट आएगा आपका फ्लोट, तो इसका भी फाइनल रिजल्ट होगा फ्लोट। अब आप इसको अगर कंसिडर करें तो FD जो है FD बाई DB हमने दिया है, तो FD बाई DB तो
ये जो वैल्यू है वो एफ डी की वैल्यू है हमारी 36.0, तो ये हो गया 36.0 बाई डी बी की वैल्यू है 5.0। अब चूंकि इसका प्रेसिडेंस हाई है डिवीज़न का, तो ये पहले कैरी आउट होगा, तो इसको हमने एक ब्रैकेट में लगा लिया, मल्टीप्लाई बाई सी एच की वैल्यू। तो सी एच की वैल्यू आपके बुक में दी गई है 5, तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 2। तो पहले 36 डिवाइडेड बाई 5.0 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 7.2। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 5 से और तब डिवाइड करेंगे हम 2 से। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 7.2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 7.2 मल्टीप्लाई बाई 5 जब हम ऑब्ज़र्व करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 7.2 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हो जाएगा 36 और फिर डिवाइड बाई 2 होगा, रिज़ल्ट आएगा आपका 18। तो आप इसके रिज़ल्ट को यहाँ पे देख सकते हैं, बुक में सॉल्व करके दिया हुआ है कि पहले इसके डेटा टाइप के आधार पे उसका जो टाइप ऑफ मतलब फाइनल वैल्यू आएगी वो गेट करेंगे एंड देन उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले रिज़ल्ट आएगा 1.4 और दूसरा रिज़ल्ट आएगा 18.0। नाउ कंसीडर एग्जांपल 14। तो कंसीडर बिलो गिवन एक्सप्रेशन व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट एंड फाइनल डेटा टाइप। तो यहाँ आप देख सकते हैं, पहला है a, b 3, 6 c इज इक्वल्स टू b बाई ए। अब a की वैल्यू है हमारा 6 और a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 6, तो आप b बाई ए किए तो 6/3 किया, 6/3। जब डिवीज़न ऑपरेटर होता है तो रिज़ल्ट हमारा फ्लोटिंग पॉइंट आता है, तो b बाई ए किया, रिज़ल्ट आया फ्लोटिंग पॉइंट। जैसे आप यहाँ पे नोट करके देख सकते हो कि हियर द ऑपरेटर डिवीज़न विच ऑलवेज गिव द फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट, सो द रिजल्ट वुड बी ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट। नाउ दूसरा है c इज इक्वल टू 6 डबल डिवाइडेड बाई 3। जैसे b फ्लोर डिवीज़न a लिखा है, तो इस केस में क्या आएगा, रिज़ल्ट 2। तो दोनों का रिज़ल्ट आएगा हमारा इंटीजर टाइप का, क्योंकि ऑपरेशन इंटीजर एंड इंटीजर में परफॉर्म कर रहे हैं। एंड फाइनली थर्ड केस में आप देखो c इज इक्वल्स टू b मॉडुलो a किया है, तो इस केस में आपको मॉडुलस मिलेगा 0 और वो भी रिज़ल्ट होगा इंटीजर टाइप का। जैसे कि अगर आप यहाँ पे कंसिडर करें फॉर अदर डिवीज़न रिलेटेड ऑपरेशन, डबल स्लैश जिसको हम बोलते हैं फ्लोर डिवीज़न एंड मॉडुलस, इफ़ बोथ ऑपरेंड आर इंटीजर रिजल्ट विल बी ऑफ इंटीजर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इवैल्यूएटिंग रिलेशनल एक्सप्रेशन जिसको हम बोलते हैं कंपैरिजन। तो ऑल कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन पाइथन हैव द सेम प्रायोरिटी विच इज़ लोअर दैन that of any arithmetic operators. All relational expressions yield boolean type values only, that is true or false. Further, chained expressions like a is less than b is less than c have the interpretation that is conventional in mathematics, that is comparison in Python are chained arbitrarily. Example, a is less than b is less than c is internally treated as first a is less than b and b is less than c, जो आप पहले ही मैंने आपको रिलेशनल ऑपरेटर के केस में पढ़ा दिया है। For chained comparison like c, x is less than y and y is less than or equals to z, which is internally converted to x is less than y and y is less than or equals to z, the common expression, that is the middle one y here, is evaluated only once, and the third expression z here is not evaluated at all when first comparison is found to be false। तो ये मैंने बताया था कि जब भी कंपाउंड एक्सप्रेशन होता है इस तरीके से शॉर्ट हैंड वर्जन में हम कंपैरिजन करते हैं तो ये एंड ऑपरेटर में कन्वर्ट होता है, और एंड के केस में मैंने जब ट्रुथ टेबल इसका पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि यहाँ पे पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं, और अगर पहला ही
जो एक्सप्रेशन है वो फॉल्स हो जाता है तो दूसरे को इवैल्यूएट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एंड का रिजल्ट ट्रू केवल और केवल तभी आता है जब दोनों के दोनों एक्साइड हमारे ट्रू रिजल्ट दें। तो अगर पहला ही फॉल्स हो गया तो दूसरा ट्रू हो या फॉल्स हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो नाउ एग्जाम्पल 15 and 16 आर गिवन इन योर बुक। यू कैन सी what will be the output of the following statement when the inputs are a is equals to 10, b is equals to 23 and c is equals to 23। तो सबसे पहले अगर आप पहले लाइन में कंसिडर करें फर्स्ट को, अगर पहली वैल्यू के अनुसार, तो आप यहाँ देखेंगे a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है 23। तो यहाँ पे 10 इज़ लेस देन 23, इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। फिर b इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू c, तो 23 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 23, इसका भी रिजल्ट आएगा ट्रू। और फिर किया है a इज़ लेस देन b, तो a इज़ लेस देन b मतलब 10 इज़ लेस देन 23 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 23। तो इस केस में भी आपको रिजल्ट मिलेगा ट्रू, क्योंकि पहले ये इवैल्यूएट करेंगे तो ये आएगा ट्रू। फिर 23 लेस देन आर इक्वल्स टू 23 इवैल्यूएट करेंगे तो ये भी आएगा ट्रू, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है इसीलिए ये ट्रू आ रहा है। अगर लेस देन रहता तो फॉल्स हो जाता। तो ट्रू एंड ट्रू, तो मैंने बताया था ट्रू 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 होता है, तो इसके रिजल्ट में आएगा तीनों ट्रू, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थ्री ऑल लाइन्स रिजल्ट इन ट्रू। बट फॉर द सेकेंड वैल्यू कि a की वैल्यू 23 है, तो इस केस में क्या हुआ 23 लेस देन 10, मतलब a इज़ लेस देन b। ये लाइन को अगर हम कंसीडर करें तो ये हो जाएगा 23 लेस देन 10, ये रिजल्ट करेगा फॉल्स। फिर दूसरी लाइन में लिखा है b इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू c, तो 10 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 10, तो ये आपका रिजल्ट आएगा ट्रू, क्योंकि b इज़ लेस देन c, तो b और c दोनों की वैल्यू 10 10 है, तो 10 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 10, ये रिजल्ट करेगा ट्रू। और थर्ड केस अगर इसको कंसिडर करें तो यहाँ हो जाएगा 23 इज़ लेस देन 10 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 10। तो यहाँ देखिए केवल इतना ही हम इवैल्यूएट करेंगे, इसको इवैल्यूएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने इतना इवैल्यूएट किया 23 इज़ लेस देन 10, इसका रिजल्ट आ गया फॉल्स। तो चूंकि इसका रिजल्ट अगर फॉल्स आ गया तो आगे एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इनिशियली ये फॉल्स है, पहला ही कंडीशन फॉल्स है, तो इसका रिजल्ट हमारा फॉल्स ही होगा। तो इसका आउटपुट मिलेगा फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो आप इसको यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ट्रू 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 पहले केस में और फॉल्स ट्रू फॉल्स दूसरे केस में। नाउ हाउ वुड फॉलोइंग रिलेशनल एक्सप्रेशन बी इंटरनली इंटरप्रिटेड बाई पाइथन। तो पहले है p ग्रेटर दैन q लेस देन y, और दूसरा है a इज इक्वल्स टू n एंड n इज लेस देन और इक्वल्स टू b। तो पहला हो जाएगा p इज ग्रेटर दैन q एंड q इज लेस देन y, दूसरा हो जाएगा a इज लेस देन और इक्वल्स टू n एंड n इज लेस देन और इक्वल्स टू b। तो देखो होता क्या है कि अब इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि p इज़ ग्रेटर दैन q इज़ लेस देन y दिया है, तो पहले हम इतना लेंगे, तो ये हो जाएगा p इज़ ग्रेटर दैन q, ये एक ब्रैकेट में डाल देंगे, फिर लिखेंगे एंड, फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे, अब यहाँ से लेंगे और ये हो जाएगा q इज़ लेस देन y। तो ये तरीका होता है इसके एक्सप्रेशन को लिखने का। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट टॉपिक इज इवैल्यूएटिंग लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो while evaluating logical expression, Python follows these rules. First, the precedence of logical operator is lower than the arithmetic operator, so constituents arithmetic and sub-expression are evaluated first and then logical operators are applied. तो जैसे अगर हम लॉजिकल एक्सप्रेशन में हमारे अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस भी दिए हुए हैं, तो पहले अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस कैरी आउट हो जाएंगे, उसके बाद लॉजिकल एक्सप्रेशंस हमारे इवैल्यूएट होंगे, क्योंकि लॉजिकल एक्सप्रेशन का प्रेसिडेंस लो होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर ऑपरेटर्स। लाइक अगर हमने लिखा 25/5 और 2.0, तो पहले 25/5 इवैल्यूएट हो जाएगा, तब उसको जज किया जाएगा 2.0 से।
2.0 प्लस 20/10 से। तो सो द ओवरऑल रिजल्ट विल बी 5. नाउ द प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर अमॉन्ग themselves is not and or. So the expression A or B and not C will be evaluated as A or B and not C. तो इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले नॉट को सॉल्व करेंगे, फिर एंड को सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में और को सॉल्व करेंगे. सिमिलरली फॉलोइंग एक्सप्रेशन P and Q or not or will be evaluated as P and Q or not or. Important: while evaluating Python, minimize internal work by following these rules. First, in OR evaluation, the second argument is evaluated if the first one is false. मतलब और के केस में क्या होता है कि सेकंड वाला पार्ट केवल और केवल तभी इवैल्यूएट होता है जब पहला फॉल्स हो, क्योंकि अगर पहला ट्रू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसका रिजल्ट ट्रू ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि और ऑपरेटर फॉल्स तभी रिजल्ट देता है जब दोनों के दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स हो, और दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो गया, मतलब अगर फर्स्ट वाला इनिशियली ही ट्रू हो गया तो रिजल्ट हमारा ट्रू ही आना है, तो सेकंड वाले को इवैल्यूएट करेंगे ही नहीं. और दूसरे केस में देखें कि इन एंड इवैल्यूएशन द सेकंड आर्गुमेंट इज इवैल्यूएटेड इफ फर्स्ट वन इज ट्रू. मतलब अगर सेकंड वाले की बात करें, एंड की बात करें, तो एंड में इवैल्यूएशन सेकंड एक्सप्रेशन का केवल और केवल तब होता है जब पहला हमारा ट्रू हो, क्योंकि अगर हमारा पहला ट्रू है तभी हम चेक करेंगे कि क्या दूसरा भी ट्रू है. अगर दोनों ट्रू होंगे तभी रिजल्ट हमारा ट्रू होगा. अगर पहला वाला ही फॉल्स हो गया तो रिजल्ट हमारा 100% है कि इट विल बी false. So for instance, consider the following examples. In expression 3 is less than 5 or 5 is less than 2, since the first argument 3 is less than 5 is true, simply result is returned as well as overall result. The second argument 5 is less than 2 will not be evaluated at all. क्यों? क्योंकि पहला ही जब ट्रू है तो फिर रिजल्ट भी इसका ट्रू ही होगा. फिर इन एक्सप्रेशन 5 लेस देन 3 और 5 लेस देन 2, सिंस द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज फॉल्स, इट विल नाउ इवैल्यूएट द सेकेंड ऑपरेशन आर्ग्यूमेंट दैट इज 5 इज लेस देन 2. अब ये भी हमारा फॉल्स है, इसलिए रिजल्ट बाद में रिटर्न होगा. तो पहला केस में आपने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट केस में पहला वाला ही हमारा ट्रू आ जा रहा था, तो सेकंड को इवैल्यूएट ही नहीं कर रहे थे. और सेकंड एग्जांपल में आप देखेंगे पहला फॉल्स आया है तभी हमने सेकंड को इवैल्यूएट किया. थर्ड एग्जांपल देखें कि इन एक्सप्रेशन 3 इज लेस देन 5 एंड 5 इज लेस देन 2. सिंस अब यहाँ पे एंड ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, सिंस फर्स्ट आर्ग्यूमेंट 3 इज लेस देन 5 इज ट्रू, इट विल नाउ इवैल्यूएट द सेकंड ऑपरेशन दैट इज 5 is less than 2 and its second argument result is returned as the overall result. And finally, in expression 5 is less than 3 and 5 is less than 2, since the first argument is 5 is less than 3 is false, simply its first argument result is returned as the overall result. The second argument 5 is less than 2 will not be evaluated at all. Now example 17 and 18 are given. What will be the output of the following expression? 5 is less than 10 and 10 is less than 5, or 3 is less than 18 and not 8 is less than 18. तो इसमें मैंने सबसे पहले बताया कि पहले हम नॉट को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा नॉट 8 is less than 18, तो ये हो जाएगा 8 is greater than 18, तो ये फॉल्स हो जाएगा. फिर एंड को सॉल्व करेंगे, तो एंड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 5 इज़ लेस देन 10, ये हमारा फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया, और 10 इज़ लेस देन 5 ये फॉल्स हो गया, तो ये दोनों का नेट रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा. फिर हम लास्ट में और से कंपेयर करेंगे तो 3 इज़ लेस देन 18, तो ये टोटल रिजल्ट विल बी फॉल्स. एग्जाम्पल 18, डिवाइडेड बाई 0 is an undefined term. Dividing by 0 cause an error in any programming language, but when following expression is evaluated in Python, Python returns no error and returns the result as true.
कुड यू टेल वाई? जैसे हमने लिखा 5 लेस देन 10 और 50 लेस देन 100/0। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप देखें, इन एन इवेल्युएशन फर्स्ट पाइथन टेस्ट द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट दैट इज 5 लेस देन 10 हियर विच इज ट्रू। इन और इवेल्युएशन पाइथन डज नॉट इवेल्युएट द सेकेंड आर्ग्यूमेंट। तो देखो जैसे यहाँ पे 5 इज़ लेस देन जो 10 है, इसको जब इवेल्युएट किया गया है तो 5 इज़ लेस देन 10 ये ट्रू आ गया। उसके बाद और ऑपरेटर के बाद ये जो लाइन है वो दी गई है, जैसे आप देखें ये जब इवेल्युएट किया तो ये ट्रू आ गया, और फिर ये बाद में दिया गया है और ऑपरेशन के, और के केस में मैंने बताया है आपको कि अगर पहला ही ट्रू हो जाता है तो दूसरे को हम इवेल्युएट ही नहीं करते हैं, तो दूसरा जब इवेल्युएट ही नहीं होगा तो इसीलिए यहाँ पे एरर भी नहीं आएगा। तो पाइथन डज नॉट इवेल्युएट द सेकेंड आर्गुमेंट इफ द फर्स्ट आर्गुमेंट इज ट्रू एंड रिटर्न द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट आर्गुमेंट एज द रिजल्ट ऑफ ओवरऑल एक्सप्रेशन। सो फॉर दिस expression, the second operation or expression, that is 50 is less than 100/0, is not evaluated at all. This is why Python reported no error and simply returned true, the result of first argument. So that is why Python doesn't give error in this case only. So hope you all understand it, student. In case of any doubt, please feel free to ask questions. And that's all for today's video. In next video we will start from type conversion. Thank you.